During the lifetime of a child, parents unconditionally take care of them, feed them, nurture them, make them capable human beings. Sadly, it has come to light, especially in the big cities, when parents need the support of their children, they are left alone, feeling completely helpless, with no one to take care of them in the last steps of their journey. There are many hapless old parents who are abandoned by their children. The reasons and excuses could be many. However, nothing can truly justify leaving one's parents to fend for themselves. Although our story today brings forth this unfortunate practice, there are guardian angels who have made it their mission to take care of the helpless, down to providing them meals, medical care, and a support system. Dr. Uday Modi, an alternative medicine practitioner from Bhayandar, is one such angel who was touched by the plight of abandoned parents left to be starved. He felt it, his urgent duty to offer succor to these hapless people who could not even get a meal a day, leave alone medical care for their illnesses. So he decided to start Shravan Tiffin Service with his own funds, which he continues to provide till this day, along with the assistance of some contributions. जब मैं उन लोगों को मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि मैं 1986 में मेरे पास इतना बड़ा घर था, मेरे पास गाड़ी थी, लेकिन मैंने जैसे जैसे मेरे बेटी की शादी की, एक एक बेटा अपनी बीवी को लेके अलग हो गया, सब अलग अलग आशियाना बना के रह रहे। कुछ दो तीन साल हमारा ध्यान रखा, उसके बाद में फिर ना वो पूछने आते हैं ना देखने आते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है खाने की, तो वो खाना भी नहीं देते हैं। जगह का प्रॉब्लम समझ में आता है, जनरेशन गैप समझ में आता है, लेकिन एक बेटा अपने माँ बाप को आधी रोटी ना दे, वो आज ये बात मुझे 11 साल पहले भी समझ में नहीं आ रही थी, आज भी समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर उदय मोदी है और मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ मुंबई के भाईंदर गांव में। करीबन 18 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 22 साल से मैं भाईंदर मुंबई में हूँ। मैं कई सालों से ऐसे बुज़ुर्ग जो है उनको मैं फ्री ट्रीटमेंट देता था, फ्री दवाई देता था। तो एक जो मेरी ट्रीटमेंट ले रहा था वो एक बुज़ुर्ग आया मेरे पास आज से 11 साल पहले, और उसने मुझे बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और कोई रखते नहीं है, ना खाना देते हैं ना पैसा देते हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि ये 3 बेटे होते हुए भी अपने माँ बाप भूखे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं उसी समय उसको बोल दिया कि अंकल कल से मेरे घर से टिफिन आएगा आपको। What started as a help to feed one senior citizen in need 11 years ago has grown into an organization that is providing breakfast, lunch and dinner to over 65 senior citizens every single day in Bhayandar and surrounding areas. Shravan Tiffin Service functions through 2 kitchens, which includes a batch of cooks, kitchen helpers and delivery boys. Dr. Uday Modi, amidst his responsibilities, occasionally takes time out to taste the food before sending it out for deliveries, making sure it is not only fit for consumption but also delicious. Shravan Tiffin Service has a well set up delivery system that delivers fresh and hot food via tempos and bicycles to the senior citizens at their doorstep on time every day. मेरा नाम पवन कुमार तिवारी है। तो हम जब टिफ़िन देने जाते हैं तो ऐसे बुज़ुर्ग लोग भी हैं जिनको देखने के बाद या टिफ़िन देने के बाद हमको एक हर्ष महसूस होता है कि मैं शायद जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया था जो ये काम कर रहा हूँ। मैं पूरे दिन के 1-2 घंटे निकाल के यहाँ पे अपनी सेवा देता हूँ, पूरे दिल से यहाँ पे मेहनत करता हूँ कि बुज़ुर्गों को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं जॉब भी करता हूँ तो मैं ये कोशिश भी करता हूँ कि मैं दिन में से 1 या 2 घंटे निकाल के यहाँ पे आ पाऊँ और अपनी सेवा दे पाऊँ। उदय भाई जो काम करता है मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आज दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है कि इतना सबका सेवा करे। घर पे जाके देखभाल करते हैं, राउंड मार के भाई खाना बराबर आता है कि नहीं आता है। अब जब ये मैंने सेवाएं शुरू की तो मुझे ऐसा एक थॉट आया था, मुझे एक विचार आया कि मैं क्यों ना उनके बेटे से बात करूं
कि भाई आप अगर अपने माँ बाप के 2 माँ बाप के पैसे मुझे देते हैं तो मैं 2 जिसका कोई नहीं है उनकी सेवा कर सकूं। तो जब फ़ोन पे मैंने उसको बताया तो वो मुझे बताने लगा कि मैंने आपको फ़ोन किया था क्या, मैंने आपको लेटर लिखा था क्या कि मेरे माँ बाप को खाना दे, ऐसा मैं नहीं दे रहा हूँ, तू भी नहीं दे। तो फिर मैंने ठान ली मैं अभी उनके बच्चे से बात नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, मुझे इन लोगों को समझाना नहीं है। और तब से मैं ये जो सेवा में लगा हूँ आज 11 साल हो गया है। और कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके बेटे बहुत सारी कमाई करते हैं, बिजनेसमैन है, प्रोफेसर है, कोई हाई कोर्ट में वकील है, लेकिन मैं आज तक फिर कभी उनके बेटे से बात नहीं की है। उदय जी, आप मेरा बेटे जैसे है। आपका मुझे बहुत मेहरबानी है जो टाइम पे मुझे खाना भेजता है। हम लोग का एक ही सहारा आप है और एक भगवान है, और इसके हम लोग को कोई का सहारा नहीं है। वो हमारे रोज़ का खाना देता है अच्छा तरह, बहुत सच में मेरे को बहुत पसंद आता है। मेरे मन से इतना आशीर्वाद देती हूँ, कोई इसका मनोकामना इसका भी पूरा हो जाए, वो दूसरी जगह पे ज़्यादा भी सेवा कर सकते हैं। 2 साल से मेरी बीबी को पैरालिसिस हो गया है और अब टिफ़िन की जो सुविधा उसने हमको करके दिया है, उदय भाई ने श्रवण टिफ़िन सेंटर, उसको हमको बहुत बहुत धन्यवाद है। और शासन दे उसको आगे आगे प्रगति करे, ऐसी हमारी भावना है। मैं आगे भी सोच के रखा है कि इन लोग ऐसी जगह में रह रहे हैं कि रात को कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि 24 घंटा हम देख रेख नहीं रख सकते हैं। तो अब मैं एक कदम और की उन लोगों के लिए मैं एक आवाज़ बनाऊँ ऐसा कि ये सारा लोग वहाँ मैं रखूँ, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले, अच्छा खाना मिले, तो खुशी खुशी अपना जो बाकी का जीवन है वो बिता सके। तो मैं उनके लिए आवाज़ बनाऊंगा। उसको मैं ओल्ड एज होम नहीं बोलूँगा, वृद्धाश्रम नहीं बोलूँगा, मैं माँ बाप का मंदिर बनाने जा रहा हूँ, टेम्पल ऑफ पेरेंट्स। तो वहाँ उन माँ बाप की सेवा होगी, उन माँ बाप की पूजा होगी, उन माँ बाप की आराधना होगी, और ये आराम से रह सकेंगे। और आने वाली पीढ़ी जो है वो देख पाएगी कि ये माँ बाप जो है वही पहला भगवान है। तो सबसे पहली पूजा है वो माँ बाप की होनी चाहिए, उसके बाद में फिर अपन जो भगवान को मानते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। In a world at a time where children are increasingly abandoning their parents, leaving them helpless with no one to look after them, people like Dr. Uday Modi are Messiah, a balm in their lives, who provide that healing touch which not only lessens their pain but also gives them comfort that there is someone to look after them, that they are not alone. Blessings showered on Dr. Uday Modi will go a long way. What is the essence of life if not to serve others and do good?